Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to deliver you a lecture number 9. This lecture number 9 is about chapter number 4 and a continuation of chapter number 3, in which we are completing our accounting cycle. Basically, accounting cycle could be completed in two parts. One is, as already we have done, making from journal entry up till the development of financial statements. The other area is, or the other type is from worksheet. So today we are talking about the completion of accounting cycle from our normal accounting cycle process, in which we have already studied up to an adjusted trial balance. From adjusted trial balance, today we are making our financial statements. How the financial statements are made, so this would be our lecture. In our previous lecture, just an overview that we studied about a matching concept and adjusting process, reporting revenues and expenses, deferred expenses, which are sometimes called prepaid expenses, deferred revenues are unearned revenues, accrued expenses are accrued liabilities, accrued revenues or accrued assets. So we should be all the time familiar about these type of terminologies, because all the time these terminologies are used in the accounting process. We do not need to say that we have paid advance expenses in advance. We have to pay the liabilities. So we have to use these type of words like deferred expenses, deferred revenues, accrued expenses or accrued revenues. So whenever somebody asks about these type of terminologies, we should quickly understand that what he or she is talking about. So that is why I am repeating all the time these type of words. We also talked about fixed assets, types of fixed assets, and now in our coming lecture, we also talk about the specific terminology which is used for the fixed assets. Then effect of omitting adjustments. What could happen if we would omit the main adjustments that we have to do at the closing time of our accounts. Then summary of basic adjustments. In our lecture number 8 we thoroughly studied. Then we made an adjusted trial balance, how these adjustments have affected on the adjusted trial balance. Then we have already talked about a vertical analysis and its interpretation. We had made a comparison of both horizontal and vertical analysis, how they could give a complete information about the growth of our business. Now in chapter number 4, we would study about the review of 7 basic steps of accounting cycle. Then we will make a worksheet, how the worksheet is prepared. Then preparing financial statements from a worksheet. As I already told you that preparing of financial statements from the normal accounting cycle, that is a one part. But on the worksheet, on one page, we can also prepare our financial statements. So in this chapter number 4, we would also study about the preparation of financial statements from the worksheet. Then preparing adjusting and closing entries from the worksheet. Now there is a difference between adjusting entry and closing entry. So we have already studied about the adjusting entries, but now in chapter number 4 we would also study about the closing entries. What are basically the closing entries, and then why we are using these closing entries.
then explain what is meant by the fiscal year and the natural business year, then analyze and interpret the financial solvency of a business by computing working capital and the current ratio. This is also a part of our analysis. So the last topic of all the chapters would include analysis of our financial data. The 7 steps of accounting cycle are, as we have already gone through, transactions are analyzed and recorded in the journals. Then transactions are posted to the ledgers. We have already know about it. Then a trial balance is prepared, adjustment data are assembled, and an optional worksheet is completed. Now this is from the part of worksheet. Then financial statements are prepared, adjusting entries are journalized and posted, then closing entries are journalized and posted. Finally, a post-closing trial balance is prepared. This is a final step of our accounting cycle, in which we make a posting of closing entries in the trial balance. So that is a final phase of accounting cycle, in which we prepare a closing trial balance, that all the temporary accounts are closed, whereas the permanent accounts of financial statements are carry forwarded in the next year, whereas the temporary accounts are closed at the end of that closing period. Now, continuing our previous example, in which Opportunities Incorporation adjusted trial balance for December 31st, 2010. So that was a complete trial balance in which we have already made our adjustments. Now this data is adjusted, all the financial numbers, all the financial figures are now completed. Now we have to make our financial statements. We would develop 2 basic financial statements, income statement and balance sheet. Now we have to see which data is related to the income statement and which data related to the balance sheet. Now the first phase is, if you go in any annual report of the company, because in our first lecture I told you that we have to talk about only the corporation level, because they need to have some formalities, they have to fulfill all the rules and regulations. So we are working on with the rules and regulations. We are not going through any informal data, informal financial statements. The purpose of formal financial statements are that whenever we make an analysis of any company, we should be very familiar about the data. We should be very familiar about the financial statements. हमें इन सब चीज़ों का पता होगा तो हमारे लिए किसी भी कंपनी में इस अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के बाद जाना और वहाँ पर एडजस्ट होना आसान होगा. अगर हमें इन फॉर्मेलिटीज़ का, इनफॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, फॉर्मल टर्मिनोलॉजीज़ का नहीं पता होगा तो हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होगा किसी भी कॉर्पोरेशन में एडजस्ट होना. और सब के सब इंटरव्यूज़ में आपसे फॉर्मल चीज़ें पूछी जाती हैं, इनफॉर्मल चीज़ें नहीं पूछी जाती. सो वी शुड बी वेरी फेमिलियर अबाउट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड देन उसमें क्या कुछ मेंशन होता है, फिर हम उसमें उसका कंपैरिजन करके देखेंगे कि क्या हमने जो पढ़ा है क्या उससे रेलेवेंट है. हम बेसिकली जितने भी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं दे आर वेरी सिंपल, लेकिन कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, क्योंकि उनका बिजनेस बड़ी लार्ज स्केल पर होता है, जब वो लार्ज स्केल पर होता है तो वहाँ पर फिर उनके पास जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होती है वो भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन उनके पास टाइटल ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं. हमने ये भी देखा है कि जब हमें नेचर ऑफ अकाउंट्स का पता चल जाता है तो हमारे लिए डिफरेंशिएट करना आसान है कि विच वन इज़ योर एसेट, विच वन इज़ योर लाइबिलिटी एंड विच अकाउंट गोज टू द ऑनर्स इक्विटी. अब जब हमें उसकी नेचर का पता है तो हमें पता चल जाएगा कि क्या ये हमारे इनकम है, क्या ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, और क्या हमारा ये नेट इनकम निकलता है. जब नेचर का पता है तो फिर अकाउंट्स की डिफरेंशिएशन भी बहुत आसान होती है.
अब हमारे पास एक सिंपल सी ट्रायल बैलेंस है, क्योंकि अभी अगर कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन लेकर आई जाए तो ये लेक्चर बोरिंग भी हो सकता है और समझना भी मुश्किल होगा। जब हम आसान चीज़ से मुश्किल की तरफ जाते हैं तो फिर हमारे लिए अकाउंटिंग समझना आसान है, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से लेकर हमारे बड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म के बिजनेस तक अकाउंटिंग का यूज़ होता है। अकाउंटिंग नहीं होगी तो ना ही हमको बजट बना सकते हैं, ना ही हम अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, और ना ही हमें पता चलेगा कि रेवेन्यू क्या है। आप अपने स्टडीज़ से लेकर और जॉब तक अपने घर में भी जाकर इवन चेक करें आप, तो आपको पता चलेगा कि फॉर्मल या इनफॉर्मल आप अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम जब अकाउंटिंग का वर्ड यूज़ करते हैं तो हम फॉर्मेलिटीज़ में आ जाते हैं। ये फॉर्मेलिटीज़ कंपनी की हद तक या बिजनेस की हद तक तो ठीक है, लेकिन जब आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में जाते हैं तो फिर आपके लिए अकाउंटिंग एक बोरिंग सब्जेक्ट भी बन जाता है, क्योंकि हमें कैलकुलेशंस अच्छी नहीं लगती। लेकिन मेरे ख्याल में अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी लाइफ में एक नंबर्स को डिसिप्लिन में लेकर आता है। तो इसीलिए अकाउंटिंग को समझना और उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमें यहाँ पर पता चल जाएगा तो हम फिर जब बिजनेस में जाएंगे तो हम वहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट बहुत आसान होगी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, opportunities in corporation have an adjusted trial balance in which we have to see which account is relevant with the assets, which account goes to the liabilities and owner's equity, and which account goes to the income statement data, which is income statement and expenses, income and expenses. And finally we have to find out our net income. So net income, as we know, that directly goes to the owner's equity. So we have to first develop income statement. Now we have to search out which accounts relates to the income and which accounts relate to the balance sheet. First we have to differentiate them. Now if you look at on the slide, you can find that there is a fees earned. Look at here, this is a fees earned. This is part of your income statement. Then rent revenue, this is also a part of your income statement because this is an income. Then wages expenses, this is a part of our income statement. Rent, utilities expenses, supplies, insurance expense, and miscellaneous expense. These are the items which relates to the income statement. Now there are some other expenses as well. We would discuss in our upcoming lectures that these could also be the part of our income statement. For example, we have taken a loan and we have to pay the interest. That is a part of our income statement. Then on our earnings we have to pay the tax. Tax is a part of income statement because tax is your expense. So that goes in the income statement. There are other expenses as well. So we have to bring all these items in the income statement. So we would study later on in our studies in upcoming lectures. Now these are all the related areas which goes to the income statement. Now these are the income statement items, whereas your cash, accounts receivable, supplies, prepaid insurance, land, office equipment, accumulated depreciation, we already know about it. What is an accumulated depreciation? These are all the assets of the company. Whereas accounts payable, wages, unearned rent, these are the liabilities, and this is a second part of our balance sheet, and these are all the liabilities. Whereas
capital account is a third component of our balance sheet, whereas now the drawings, this is important part. Now we have to see a different treatment of drawings. We do not need to directly withdraw this amount from our balance sheet, from the capital account. We have to make a different treatment. We would see in our income statement. So what is called basically about this type of account. Now first we have to make an income statement. So as we know that we have to make a formal income statement, so we should know about the complete structure of our income statement. First we have to write the name of the company, Opportunities Incorporation, this is the name of the company, whereas we are making income statement. Income statement, we would write the title of our statement which we are going to prepare. Now this is income statement. In the third row we would write what is actually the date of our income statement, that is December 31st 2010. Now this is a complete title of our income statement. Opportunities Incorporation would be the top name of the income statement. Then we have to write statement, that is income statement, and December 31st 2010. Now here is revenue. Revenue is the main title. Then we have to write what kind of revenue we are earning, that is fees earned. Fees earned is a title of our main revenue which we are earning, that is the amount of 16,840. This is a total amount which we are earning, whereas we have also another type of revenue, that is rent earned. Rent earned is another our source of revenue which we have earned 120 rupees. हमने ये amount अब तक earn की है. So total amount is 16,960. This is a total amount that we have earned in our all the sources of revenue. हमने यहाँ तक काम complete किया. Then we have to go our expenses. एक्सपेंसेस का आपका टाइटल होगा. उसके बाद हमने पूरे के पूरे जितने भी एक्सपेंसेस किए थे वो हमने लिखने होंगे. फर्स्ट वन इज योर वेजेस एक्सपेंसेस. वेजेस एक्सपेंस हमारी अमाउंट थी 4,525. ये हमारा टोटल अमाउंट जो हमने एक्सपेंस की जनरेट की थी. अब इसमें आपके पास कुछ पेबल्स भी थे, लेकिन हमारा अकॉर्डिंग टू द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमने सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखने हैं जो इनकर हो चुके हैं. इट डजंट मैटर दैट वी आर पेइंग कैश और वी आर नॉट पेइंग कैश. तो हम यहाँ पर अपनी टोटल अमाउंट एक्सपेंसेस की लिखेंगे. उसके बाद सप्लाईज एक्सपेंसेस. सप्लाईज एक्सपेंसेस 2040. ये अमाउंट हमने एक्सपेंस की थी, जिस अब अगर इसको देखें कि ये हमारी एडजस्टिंग एंट्री में मौजूद थी. उसके बाद यूटिलिटीज एक्सपेंसेस. यूटिलिटीज एक्सपेंसेस ये हमारी अमाउंट थी 1600 की, हमने ये भी एक्सपेंस किया था. उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस 100 की अमाउंट थी, ये भी हमने एडजस्टिंग एंट्री के थ्रू फाइंड आउट की थी. उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये भी हमने एडजस्टिंग एंट्री के थ्रू किया था और ये 50 की अमाउंट थी. उसके बाद मिसलिनियस एक्सपेंसेस किए थे हमने और वो हमारी अमाउंट थी 455.
आपके ये टोटल एक्सपेंसेस हमने किए थे, तो टोटल एक्सपेंसेस की अमाउंट हमारे पास आती है 9755। टोटल अमाउंट आपकी ये बनती है। अब इस टोटल एक्सपेंसेस को हम रेवेन्यूज में से माइनस करेंगे, जो हमारे रेवेन्यूज थे, तो आपके पास नेट इनकम आएगी। नेट इनकम, या इसको हम नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, कोई भी अमाउंट, कोई भी वैल्यू इसके लिए यूज की जाती है, लेकिन इसका नेट का वर्ड लगाने का मकसद ये है कि आपके पास यू हैव जनरेटेड और यू हैव अर्नड दिस अमाउंट आफ्टर ऑल योर एक्सपेंसेस। तो आपके पास यहाँ पर अमाउंट आएगी 7205। आपके पास ये नेट इनकम निकल आई है। अब ये अमाउंट हमारे पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेट इनकम आपकी डायरेक्ट जाती है कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट आपका क्या है, जिसमें आप जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट की, विथड्रॉ की, अल्टीमेटली ये अमाउंट भी आपकी वहां पे चली जाती है। अब ये तो आपकी एक बड़ी सिंपल इनकम स्टेटमेंट है, लेकिन इस सिंपल इनकम स्टेटमेंट में कुछ ऐसे आइटम्स भी होते हैं जिनको आपने एक्सक्लूड करना होता है। और आपका, मैंने बताया जैसे ऑलरेडी आपको, आपने लोन लिया हुआ है और अगेंस्ट दैट लोन यू हैव टू पे योर इंटरेस्ट। नाउ this is an amount after your interest. Now after interest you have to pay another expense, that is your income tax, because this is your income. आपने इस इनकम को भी, इस इनकम पर भी गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। अब उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता कि कॉर्पोरेशंस में डबल टैक्सेशन होती है, एक कंपनी खुद देती है, फिर उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अपने शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स उस पर अपना टैक्स देते हैं। दैट इज अ सेपरेट इशू, क्योंकि हम वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट आवर सिंपल इनकम स्टेटमेंट। हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसकी डिटेल आप लोग इंट्रोडक्शन टू बिजनेस या बिजनेस के किसी सब्जेक्ट में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है और उसमें कौन कौन से आइटम और कैसे कैसे आइटम होते हैं। अब आपके पास यहाँ पर सिंपल ये नॉर्मली दो कॉलम्स बनाए जाते हैं, एक ये कॉलम होता है और ये एक कॉलम होता है। इसमें आपके पास यहाँ पर नेट वैल्यूज आती हैं और यहाँ पे आपकी ग्रॉस वैल्यूज आती हैं। अब ग्रॉस में आप डिडक्शंस एडिशंस करते हैं, जो डिडक्शंस आपने की हैं हर एक टाइटल की, वो फिर फाइनल अमाउंट आपकी नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट होती है। जिस तरह हमने यहाँ पे किया था कि आपके पास दो वैल्यूज थी और इनको आपने ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे, आपके पास यहाँ पर ज्यादा वैल्यूज थी और इसको आपने टोटल करके इस कॉलम में ट्रांसफर कर दिया। आपके तीन कॉलम्स भी बन सकते हैं, अगर इनके दरमियान भी कोई आपकी वेजेस की डिफरेंशिएशन हो सकती है, आपके पास सप्लाईज की डिफरेंशिएशन हो सकती है और भी हो सकती है, तो आप उसके लिए यहाँ पर तीसरा कॉलम भी बना सकते हैं। अब यहाँ तक तो बात कंप्लीट है कि हाउ वी हैव टू मेक एन इनकम स्टेटमेंट। नाउ वी हैव अ नेट इनकम. But if you could remember, I already told you in the previous slide that there is another type of account that is called drawings. So drawing is that amount which is withdrawn or which is withdrawn by the owners for his or her personal use. So how we have to treat? Before that we directly deducted this amount from the capital account. But when we are making a formal financial statements, we cannot withdraw that total amount from the capital account. We have to complete a phase. That phase is, now from income statement we have to minus drawings. 4,000. Now this 4,000 is deducted from our net income. Now at this stage we have 3,205. This is basically a net amount which is transferred in the capital account. एक तो वो अमाउंट है जो ओनर्स ने विड्रॉ कर ली। अब आफ्टर विड्रॉ वी हैव अनदर अमाउंट दैट इज एक्चुअली अ नेट इनकम, जिसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी अर्निंग रिटेन्ड। आपने बिजनेस में ये अमाउंट रहने दी है, बजाय इसके कि आपने जितनी नेट इनकम हुई होती सारी की सारी विड्रॉ कर लेते। 7,205 वो सारी की सारी अमाउंट विड्रॉ हुई होती, आप वो सारी की सारी विड्रॉ नहीं कर रहे। आप सिर्फ अपनी जरूरत की अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं
और जो बाकी की अमाउंट नेट इनकम की रह गई है वो फर्दर आप कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम जो तीसरी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी। अब ये जब 3,205 रुपीज ऐड हो रहा है आपके कैपिटल अकाउंट में, तो ये उसमें चेंजेस लेकर आ रहा है। आपकी और बहुत सी चेंजेस होती हैं कैपिटल अकाउंट के थ्रू, लेकिन यहां पर हम एक नेट इनकम को ऐड कर रहे हैं अपने कैपिटल अकाउंट में, एंड दैट इज कॉल्ड योर रिटेन्ड अर्निंग, कि आपने अर्निंग को रिटेन्ड कर लिया अपने बिजनेस के अंदर, जिसकी वजह से आपके कैपिटल अकाउंट में चेंज आई है। अब स्टेटमेंट बड़ी इसलिए बनती है कि उसमें और ज्यादा चेंजेस आई होती हैं। आप कंटिन्यूसली विड्रॉ कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी लेके आ रहे होते हैं, आप कुछ और साथ आपने रिजर्व अकाउंट्स भी बनाए होते हैं, वो रिजर्व अकाउंट्स आपने कैपिटल अकाउंट के थ्रू बनाए होते हैं, तो वो भी आपके कैपिटल अकाउंट में चेंजेस लेकर आ रहे होते हैं, तो इसलिए उसकी सेपरेट एक स्टेटमेंट बनती है। लेकिन हमारे पास अब एक सिंपल फिगर है दैट इज 3,205, ये आपकी कहलाती है अर्निंग रिटेन्ड या रिटेन्ड अर्निंग। ये आपकी फिर अब कैपिटल अकाउंट में जाएगी। अब यहां पर हम 4,000 का सेपरेट कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपने जो बेसिक मेंशन करनी है अपनी नेट इनकम, वो नेट इनकम 7,205 की होगी। आपने इसको इनकम स्टेटमेंट में मेंशन नहीं करना, ये मेंशन होगी आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी में जाके, वहां से आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा, नेट कैपिटल अकाउंट। वो नेट कैपिटल अकाउंट आपका जाएगा फिर बैलेंस शीट में। अब हमें तो क्योंकि अमाउंट पता है, सिर्फ एक ही आपकी डिडक्शन हुई है, तो इसलिए हम उसका कैपिटल अकाउंट सेपरेट नहीं बना रहे, हम सिंपल इनकम स्टेटमेंट पहले बना रहे हैं और हम उसका इफेक्ट देख रहे हैं कि आपने विड्रॉ की तो उसका क्या इफेक्ट हुआ है। अब उसको हम इनकम स्टेटमेंट में लेके जाएंगे। अब ये सारी की सारी वैल्यूज आपने देखी हैं कि क्या वैल्यूज थी, किस तरह हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई है, और उस इनकम स्टेटमेंट के थ्रू हमने क्या नेट इनकम जनरेट की, उस नेट इनकम किस अमाउंट ने नेट इनकम में से आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होना है। नाउ अब आप इसको देखें कि कितने कितने अमाउंट और कौन कौन से अकाउंट्स हमने शिफ्ट किए हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट में। आपके पास ये सारे के सारे एक्सपेंसेस शिफ्ट हुए हैं इनकम स्टेटमेंट में। आपके पास ये रेवेन्यूज थी, ये सारे के सारे शिफ्ट हुए हैं कैपिटल अकाउंट आपके इनकम स्टेटमेंट अकाउंट में। अब ये 4,000 है, ये आपका गया है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल या स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी में जाएगा। और आपकी जो नेट इनकम है वो भी आपकी कैपिटल अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी में जाएगी। उसके बाद जो आपकी अमाउंट होगी वो फिर शिफ्ट होगी आपकी बैलेंस शीट में। अब इनकम स्टेटमेंट हमने बना दी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी का भी पता चल गया। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर आवर बैलेंस शीट। फर्स्ट, गोइंग डायरेक्टली टू द balance sheet, we have to search out which items are the items of balance sheet. आपके पास cash, this is a type of asset. Account receivable, this is a type of asset. Supplies, a type of asset. Prepaid insurance, a type of asset. Land, a type of asset. Office equipment, a type of fixed asset, and a contra account is accumulated depreciation. Then these are all the asset sides, these are all the asset sides of the balance sheet. Now we are not differentiating which one is your fixed asset and which one is your current asset. We are just directly saying that these are all your assets. अब assets में दरम्यान में जो टाइटल हैं, टाइटल में से हम देख सकते हैं कि कौन से आपके accruals हैं, कौन से आपके deferrals हैं, कौन से आपने एक्सपेंसेस पे करने थे वो आपकी लाइबिलिटीज में जाएंगे, और कौन से आपके ऐसे एसेट्स थे जो आप एडवांस में पे कर चुके थे। अब आपके पास सप्लाईज आपने एडवांस में पे किया हुआ है, आपने प्रीपेड इंश्योरेंस एडवांस में पे किया हुआ है, ये भी आपका एक्सपेंस है, ये डेफर्ड एक्सपेंस है आपका। उसके बाद ऐसा कोई और आइटम नहीं है जो आपकी एडवांस में पेमेंट की हुई है आपने। फिर आपके पास अकाउंट्स पेएबल, ये अकाउंट्स पेबल आपका लाइबिलिटी है। अक्रूवल्स, वेजेस आपकी अक्रूवल्स, देन
अनअर्न्ड रेंट, या आपने एडवांस में कोई चीज पे की है, सॉरी एडवांस में आपने रिसीव की है, या आपके डेफरल्स बन जाते हैं। फिर आपका ये तीसरा कंपोनेंट कैपिटल अकाउंट। अब हमने इस सारी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को देखते हुए अपनी बैलेंस शीट बनानी है। वो आपकी अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी? नाउ कम टू द पॉइंट। अगेन वी हैव टू राइट द टाइटल ऑफ द कंपनी फर्स्ट, दैट इज अपॉर्चुनिटीज, opportunities incorporation. This would be the title. Then what we are making, that is our balance sheet. The third one is a time period. At the end of December 31st 2010. Now going back again to our first lecture in which we said that what is the definition of balance sheet. We said that it shows financial results or financial position of the company for a specific point in time. This specific point in time means up to this, when the company was established, when the business was established, from that period to up till now. इसमें आपके पास क्वांटिटी नहीं है, सारे का सारा आपका टाइम पीरियड चल रहा है। उस टाइम पीरियड में आप बता रहे हैं कि वो टाइम पीरियड क्या है। आपने क्वांटिटी मेंशन नहीं करनी। लेकिन जब हम इनकम स्टेटमेंट में गए थे, जो हमने पिछली स्लाइड्स देखी हैं, इस इनकम स्टेटमेंट में आप लिख रहे हैं December 31st 2010। ये आपका स्पेसिफिक पीरियड है। ये स्पेसिफिक पीरियड आपका स्टार्ट होता है 1 जनवरी 2010 से। ये स्पेसिफिक पीरियड है। वो स्पेसिफिक पीरियड आप बता रहे हैं 1 साल का हो सकता है, आपका 1 महीने का हो सकता है, क्योंकि ये सारी की सारी आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी जो स्टार्ट हुई थी वो आपकी 1 नवंबर से स्टार्ट हुई थी। अब 2 मंथ्स है, तो इसमें जो आपकी क्वांटिटी है वो 2 मंथ्स की है। अब इन 2 मंथ्स में आप ये सारी की सारी चीजें बता रहे हैं। 2 मंथ्स एक क्वांटिटी का टाइम है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपने कितना काम किया, उसके अगेंस्ट आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। लेकिन जब आप बैलेंस शीट पे जाते हैं तो बैलेंस शीट में आपने एट द एंड ऑफ द पीरियड लिख रहे हैं, या एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम कि आज तक जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ। अब ये अगर 2020 आ जाता है तो इस 2020 का मतलब ये होगा कि जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 नवंबर 2010 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक, आज 31 दिसंबर 2020 तक इसने क्या कुछ इसकी फाइनेंशियल पोजीशन है। लेकिन जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उस इनकम स्टेटमेंट में आप बताएंगे 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक आपने कितना अर्न किया, उस 1 साल के अंदर आपने कितना अर्न किया। या अगर हम और सिंपल तरीके से लें तो हम नेक्स्ट ईयर पे चले जाते हैं। हम कहते हैं कि इनकम स्टेटमेंट बनानी है हमने 31 दिसंबर 2011 की। अब वो इनकम स्टेटमेंट आपकी बनेगी 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2011 तक। वो 1 साल होगा। हमने पिछले 2 महीने इसमें से निकाल दिए क्योंकि वो उस क्वांटिटी के अंदर नहीं आ रहे, उस टाइम पीरियड के अंदर नहीं आ रहे। लेकिन जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट आपकी बनेगी टिल 31 दिसंबर 2011। अब वो 2 महीने भी शामिल है और फिर अगला साल भी शामिल है। तो इसमें अब आपके पास जो टाइम पीरियड 14 मंथ्स का आ चुका है। लेकिन इनकम स्टेटमेंट में आपके वो 12 मंथ्स ही रहे हैं क्योंकि वो क्वांटिटी थी, 1 साल का चेक करना चाह रहे हैं। अब वो आप इनकम स्टेटमेंट में देख रहे हैं कि आज तक इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। नाउ कमिंग बैक अगेन अवर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट आप बना रहे हैं। बैलेंस शीट में आपके पास जो डाटा है, आपने देखा आपके पास कौन कौन सा डाटा था। आपके पास अकाउंट रिसीवेबल था, आपके पास कैश थी, आपके पास सप्लाईज थी, आपके पास लैंड थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड थी आपके पास। ये आपकी एसेट साइड्स थी।
फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके पास कैप लाइबिलिटीज में आपके पास अकाउंट्स पेबल था, आपके पास वेजेस पेबल था, आपके पास अनअर्न्ड रेंट था, आपने वो टोटल किया, फिर ऑनर्स इक्विटी पे आ गए। अब आपके पास सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे अकाउंट्स फॉर्म में। हम बैलेंस शीट जो बनाएंगे वो आपके अकाउंट फॉर्म में होगी। उसमें आपके पास दो कॉलम्स, जिस तरह आप लेजर अकाउंट्स बनाते थे, आपके पास एक डेबिट साइड होगी और दूसरी आपके पास क्रेडिट साइड होगी। अब इसका टाइटल आपके पास होगा एसेट्स, ये मेन टाइटल है। अब इसमें आपके पास करंट एसेट्स, ये इसका सब टाइटल होगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपके पास कैश आपके पास है 2065, ये कैश अवेलेबल है। फिर आपके पास अकाउंट्स रिसीवेबल। अब यहां पर मैं क्योंकि एक स्पेस कम होने की वजह से आई एम जस्ट राइटिंग अकाउंट रिसीवेबल, दिस इज एन एब्रीविएशन, बट in your exam you have to write completely accounts receivable, a complete word rather than writing A/R. Now we have an account receivable of 2720. Then prepaid insurance. Prepaid insurance आपके पास 2300। उसके बाद आपके पास सप्लाईज आपके पास 760 की थी। सो दीज वर द टोटल करंट एसेट्स विच कुड बी लिक्विडेटेड विद इन 1 ईयर। आप एक साल के अंदर उनको लिक्विडेट कर सकते थे। अब आपके पास यहाँ पर जो टोटल अमाउंट आएगी दैट इज 7845। ये अब आपके पास जिस तरह मैंने कॉलम बनाया था इनकम स्टेटमेंट में, इसी तरह इसका भी आप कॉलम बनाएंगे और यहाँ पर भी आप इसको लिख सकते हैं। ये आपकी जो रॉ डेटा था या आपको ग्रॉस वैल्यूज थी उसको आपने एक कॉलम में लिखा और उसकी टोटल अमाउंट आपने नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर दी। उसके बाद आपके पास आता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स अगेन ये आपका टाइटल था, उस टाइटल में आपके पास आता है लैंड आपकी 20,000 की थी। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट आपका 1,800। अब यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे, दैट वाज 50। अब आपके पास 1,750 ये अमाउंट आपकी आती है। अब आपने देखा कि हमने एक और कॉलम यहां पर बना लिया। अब यहां पर आपके 3 कॉलम्स बन गए। आपने पहला रॉ डेटा शिफ्ट किया, नेक्स्ट ग्रॉस डेटा में ग्रॉस डेटा का टोटल आपने फिर ऐड कर दिया तीसरे कॉलम में। अब आपके पास जो टोटल आपके फिक्स्ड एसेट आते हैं दैट इज 21,750। अब यहां पर आप देखेंगे कि आपके टोटल एसेट्स कितने बनते हैं। आपके पास करंट एसेट्स, फिर फिक्स्ड एसेट्स। अब टोटल जितने एसेट्स थे उनकी टोटल अमाउंट करेंगे तो आपके पास बनेगा 29,595। ये आपके पास अब टोटल अमाउंट एसेट्स की आ रही है, जिसमें आपके पास करंट एसेट्स भी हैं और अब आपके पास फिक्स्ड एसेट्स भी हैं। फिर आप लायबिलिटी साइड पे जाएंगे अपने, यहां पर आप लायबिलिटीज लिखेंगे। लायबिलिटीज, अब यहां पर भी आपकी इसी तरह आती है करंट लायबिलिटीज या इसको आप कहते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, कि जिनकी मैच्योरिटी टाइम पीरियड 1 साल या 1 साल से कम है। तो आप यहां पर लिखेंगे करंट लायबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। अब इस शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का अगेन आपने टाइटल दिया और यहां पर आपके पास
वेजेस पेएबल, वेजेस पेएबल अगेन आपने पूरा यहां पर लिखना है और वो सिर्फ आपने एक एब्रीविएशन नहीं लिखनी। वेजेस पेएबल आपकी है 250 जो आपने बेसिकली एडजस्टिंग एंट्री के थ्रू लेकर आए थे। फिर आपका अकाउंट्स पेएबल 900। थर्ड वन इज योर अनअर्न्ड रेंट, दैट वॉज योर 240। टोटल ये अमाउंट आपकी पहले 360 की थी। नाउ एट दिस स्टेज आफ्टर मेकिंग योर एडजस्टिंग एंट्री यू हैव अ नेट अमाउंट ऑफ 240। तो आपने इसका टोटल किया, टोटल अमाउंट आपकी शिफ्ट होगी 1390 से, ये आप लास्ट कॉलम में ले जाएंगे। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कह लें या ऑनर्स इक्विटी कह लें, कोई भी इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं। कैपिटल, अब आपने जो इन्वेस्ट किया था कैपिटल, या यहां पर लिख दें ऑनर्स इक्विटी, दैट वाज 25,000। अब यहां पर जो मैंने लास्ट इनकम स्टेटमेंट में आपको बताई थी कि आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी के अमाउंट लेकर आनी। अब यहां पर आपके पास नेट इनकम आपने अर्न की थी 7,205। अब यहां पर कौन सी अमाउंट आएगी, और मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि you had also this amount, now you had also made another deduction, that was your drawings of 4,000। पहले महीने आपने नवंबर में 2,000 आपने विड्रॉ किया था और दिसंबर के एंड पर आपने 2,000 और विड्रॉ किया था अपने पर्सनल यूज के लिए। तो यहां पर बेसिकली आपकी अमाउंट लिखी जाएगी रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी अर्निंग रिटेन, आपने उस अर्निंग को रिटेन कर लिया है, रख लिया है अपने बिजनेस में ही। वो अमाउंट आपकी 3,205 होगी। नाउ दिस इज अ नेट अमाउंट, क्योंकि आपने जो अर्न किया था वो अर्निंग आपने की थी 7,205 से, 4,000 आपने इसमें से डिडक्ट किया अपनी ड्राइंग्स के लिए। अब आपके पास 3,205 की अमाउंट बचती है जिसको आपने ट्रांसफर किया। यहां पे ट्रांसफर करने के बाद आपके पास अमाउंट आती है 28,205। ये आपके पास नेट कैपिटल की वैल्यू होगी। आपने इन दोनों का टोटल किया तो दैट मस्ट बी इक्वल टू योर 29,595। आपकी यहां पर बैलेंस शीट बन गई है। आपने एक शीट बनाई है जो दोनों अमाउंट्स को इक्वल कर रही है, आपकी एसेट्स को, लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी को। अब यहां पर हम चेक कर सकते हैं कि शुरू में जो फर्स्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, उस अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने देखा था कि योर एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू योर लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। अब अगर आपको एसेट्स बताए गए हैं, लायबिलिटीज नहीं बताई गई, लेकिन कैपिटल अकाउंट आपको बताया गया, तो आप उसमें ऑटोमेटिकली चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी अमाउंट इसमें लायबिलिटीज की थी, क्योंकि एसेट्स में से आप माइनस करेंगे कैपिटल अकाउंट को तो आपके पास लायबिलिटी की अमाउंट बच जाएगी, क्योंकि एसेट्स ने हमेशा इक्वल होना है, हमेशा इक्वल होना है लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी के। अब ये वैल्यूज बेसिकली बता रही हैं कि लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी ने फाइनेंस किया है आपके एसेट्स को। आपके पास ये वैल्यू है और आपकी ये वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज ने आपके एसेट्स को जनरेट किया है, फाइनेंस किया है। बेसिकली वो फाइनेंस किया है तो आपके पास कैश भी आ गया है, अकाउंट रिसीवेबल भी आ गया है, प्रीपेड इंश्योरेंस भी आ चुका है, आपके पास सप्लाईज भी आ चुकी हैं, लैंड भी आ चुकी है और ऑफिस इक्विपमेंट भी आपके पास आ चुका है। ये सारी की सारी चीजें आई हैं किसके थ्रू? आपकी लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी के थ्रू। अगर आपके पास लायबिलिटीज या ऑनर्स इक्विटी नहीं होता तो फिर आप एसेट्स अपने जनरेट ही नहीं कर सकते थे, एसेट्स आप अपने बना ही नहीं सकते थे। तो यही चीज आपको मेंशन कर रही है बैलेंस शीट। अब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? कोई भी अगर आपका एक्सटर्नल यूजर या इन्वेस्टर देखना चाहेगा तो वो ये देखेगा कि इसके पास कितने एसेट्स हैं, उन एसेट्स में से आपके करंट एसेट्स कितने हैं और आपके फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं।
आपकी लाइबिलिटीज कितनी है और आपने खुद उन एसेट्स में कितना इन्वेस्ट किया है। इफ फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू गेट अ लोन फ्रॉम अ बैंक, द बैंक वुड आस्क यू दैट शो मी योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ he or she wants to check that what is actually a net profit of the company, क्या कर रही है कंपनी, वो कैसा चल रहा है उसका बिजनेस, वो अर्न कर रही है या लॉस में जा रही है। पहले नंबर पे तो वो चेक करेंगे, फिर उसके बाद वो बैलेंस शीट चेक करेंगे कि अब इस वक्त बिजनेस की वर्थ क्या है, इसके एसेट्स कौन कौन से हैं, कोई ऐसे एसेट्स तो नहीं है जो उनकी जो लोन दिया हुआ उसको भी डुबो दे और कंपनी लॉस में चली जाए, और लॉस में जाने से उनका इंटरेस्ट तो उसने लेना ही था, जो उन्होंने लोन की अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट दी थी वो भी कहीं ना डूब जाए, वो भी कहीं लॉस में ना चली जाए। सो दे हैव टू ऑब्जर्व कीनली दीज टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। आफ्टर ऑब्जर्विंग दीज इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट स्टेटमेंट्स, नाउ दे कैन इजीली मेक द डिसीजन वेदर दे हैव टू एक्सटेंड लोन और नॉट। लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं। अब क्योंकि ये बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसलिए बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इज अ वेरी बेसिक इनकम स्टेटमेंट विच इज ओनली वी आर यूजिंग टू मेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी तो बहुत सिंपल है इस वक्त, क्योंकि हमारे पास कंपोनेंट्स ही नहीं है। आपके पास सिंपल एक कंपोनेंट कैपिटल अकाउंट का है और उसमें 4000 की ड्राइंग्स हैं और नेट इनकम आप 3 कंपोनेंट आपने उसमें ऐड किए हैं, इनके एडिशन और डिडक्शन किए हैं, उसके बाद ये अमाउंट आपके पास आई है। सो दीज आर द टू बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट वी हैव प्रिपेयर्ड और डेवलप्ड फ्रॉम आवर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अगर हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ना बनाया होता, सिंपल एक अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता, तो हमारा सारे की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत बनती, हमारे पास नेट रिजल्ट्स गलत आते, हमारे पास नेट इनकम गलत आती, वो नेट इनकम आपकी कैपिटल अकाउंट में जानी थी वो गलत कैपिटल अकाउंट बनता, और आपके पास जो बैलेंस शीट में आपके पास रिसीवेबल्स थे, प्रीपेड इंश्योरेंस थी, सप्लाईज थी, ये सारी गलत वैल्यू से लिखी जाती, आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट भी गलत वैल्यू से लिखा जाता। सो दैट इज वाई एडजस्टिंग एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू फाइंड आउट बाई आवर ओन सेल्फ बिकॉज दिस इज इम्प्लिसिटली मेंशन्ड। Nobody would tell you explicitly, सेपरेट आपको जनरल एंट्री नहीं बताएगा, आपने उसको खुद सर्च करना है कि इसमें कोई ऐसा डाटा तो नहीं है, कोई ऐसी कंपोनेंट तो नहीं है कि जिसकी एडजस्टिंग एंट्री हमने करनी है। हम उसकी एडजस्टिंग एंट्री अगर नहीं करेंगे तो आपके पास इनकम स्टेटमेंट भी गलत बनेगी। यू विल फाइंड आउट अ रॉन्ग रिजल्ट्स ऑफ योर इनकम स्टेटमेंट, यू विल फाइंड आउट द रॉन्ग रिजल्ट्स और रॉन्ग वैल्यूज ऑफ योर बैलेंस शीट। आपने जब उसकी गलत वैल्यूज निकाली हैं तो अल्टीमेटली उसमें ट्रू एंड फेयर पिक्चर डिपिक्ट नहीं होगी। सो अप टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड द बेसिक 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम अवर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। यहां तक हमने जितना काम करना था कर दिया हुआ है। उसके बाद कुछ इसकी नेक्स्ट इंटरप्रिटेशंस हैं, कुछ और फर्दर डिस्क्रिप्टिव चीजें हैं जो हमने नेक्स्ट डिटेल में देखनी है। I hope that before that these are easily understandable for you because we repeatedly explained these items time and again, बार बार हमने उनको explain किया है so that we should memorize कि this item is related with this financial statement and that item is related with that kind of income, that type of financial statement। हमें इन चीज़ों का जब तक पता नहीं होगा हम आगे नहीं जा सकते, इसलिए हर आइटम का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। Now next, as in our previous slide, we divided assets into 2 components। अब थोड़ा सा एक फर्क लेके आ रहा हूं मैं। हमने सिंपल वर्ड यूज किया था करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। अब यहां पर फिक्स्ड एसेट के लिए एक डिफरेंट वर्ड यूज किया जाता है जो कि आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। ये पूरे का पूरा एक टाइटल यूज किया जाता है। इसकी रीजन ये है कि ये सारे के सारे रूल्स आपके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बताए जाते हैं। जो आपकी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो आपके स्टेटमेंट्स, ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, ये स्टैंडर्ड डेवलप करता है ताकि
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक हार्मोनाइजेशन आ जाए, एक जैसी नजर आए, कि मैंने फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मैं उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इजीली कंपेयर कर सकूं, दैट इज हार्मोनाइजेशन। मेरे लिए अंडरस्टैंडेबल हो कि मैं यहां पे बैठा हूं और मैं कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मे बी यूके की कंपनी में या यूएस की कंपनी में, जापान की कंपनी में। तो अब हार्मोनाइजेशन आपको यह बताती है कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए इन्वेस्ट कर सकते हैं यूके में, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यूएसए में, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जापान में, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं चाइना में। अब कैसे इन्वेस्ट करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होगी कि नहीं होगी, मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताएंगी। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड्स होते हैं। जिस तरह हमने शुरू के लेक्चर में देखा था कि हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो वो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती है। जितने भी एक्सटर्नल यूजर्स हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं और उसकी बेस पर डिसीजन लेते हैं कि बीइंग इन्वेस्टर मैंने देखना है कि मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे यहां से प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बीइंग क्रेडिटर या बीइंग ए बैंक, मैं अगर इनको लोन दूं तो क्या मेरे लोन का रिटर्न प्लस मुझे इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बीइंग कस्टमर, मैं देखूं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। तो कंपनी जब प्रॉफिटेबल है तो वो प्रोडक्ट्स भी अच्छी बनाएगी, उनकी प्रोडक्ट्स भी ठीक होंगी, वो उनके लिए यूजर फ्रेंडली होंगी। मेरे लिए डिसाइड करना आसान होगा कि इस कंपनी के प्रोडक्ट परचेज करूं या इसकी परचेज करूं, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी जा रही है तो ये स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हैं, ये क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते क्योंकि ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है कि नहीं है। फिर गवर्नमेंट ने देखना है कि क्या ये प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये मेंशन होता है कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन किए गए हैं कि नहीं किए गए। अब आपके पास बैलेंस शीट में एसेट साइड पर आप डिवाइड करते हैं एसेट्स को करंट एसेट्स में और फिक्स्ड एसेट में। नाउ वी आर नॉट यूजिंग फिक्स्ड एसेट टर्मिनोलॉजी, वी हैव टू यूज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टर्मिनोलॉजी इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसके लिए प्रॉपर एक स्टैंडर्ड मौजूद है, वो आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 है। वो बताता है कि आपने प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट इसको एक हेडिंग में लिखना है। फिर इसमें आपने डिटेल देनी है कि आपके पास प्रॉपर्टी में क्या चीजें हैं, प्लांट में क्या चीजें हैं और इक्विपमेंट में कौन कौन सी चीजें हैं। फिर वो आपको इनकी डेप्रिसिएशन के मेथड्स भी बताता है कि आपने कैसे डेप्रिसिएशन लेनी है। आपने स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन लेनी है, आपने स्ट्रेट लाइन, आपने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लेनी है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कुछ ऐसे आपके कंपोनेंट्स होते हैं उनकी आउटपुट शुरू के सालों में बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनके नेक्स्ट ईयर्स या कमिंग ईयर्स में उनकी आउटपुट को इतनी अच्छी नहीं होती। इस वजह से फिर उनका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज किया जाता है कि शुरू में फिर वो ज्यादा कंज्यूम भी कर रही हैं, वो एक्सपेंस भी ज्यादा होता जा रहा है उनका, तो इसलिए उसको फिर शुरू में उनके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी ज्यादा लिया जाता है। आपके पास इसके अलावा कुछ और मेथड है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड है और बेसाब मेथड्स हैं जिनकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। अभी सिंपल यहां पर एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको देने का मकसद था। सो इन कंक्लूजन वी हैव टू मेक a proper division of our fixed assets. One is your current asset, the other is your property plant and equipment. Now that's correct. Cash and other assets that are expected to be converted into cash sold are used up usually in less than a year are current assets. As I mentioned in our previous lectures that current assets are those which can be consumed or converted into the cash within 1 year. एक साल के अंदर अंदर जब वो आपके कैश में या आप उनको कंज्यूम कर लेते हैं
तो दीज आर ऑल कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ योर करंट एसेट्स। अब जो साल से ऊपर जाते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की हेडिंग में आएंगे। अब आई एम नॉट नो मोर यूजिंग फिक्स्ड एसेट्स, आई एम जस्ट यूजिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो in conclusion, we have reached to this point that current assets are those which can be converted into the cash or can be consumed within 1 year। यहां पर पॉइंट हमारे पास 1 साल का है कि 1 साल के अंदर आप उनको कंज्यूम कर लेते हैं या वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोनों चीजें आपके पास, या तो आपने उनको कंज्यूम कर लिया या फिर आपकी वो कैश में कन्वर्ट हो गई हैं। तो दैट बिकम्स योर करंट एसेट्स। And you have to mention the title, current assets, and all these items which comes under this definition or mentioned in our current assets. Now besides cash there is notes receivable. Note receivables means that you have to given a complete agreement that we would receive cash within this period of time and your debtor means कि जिसने आपको पे करना है वो आपको लिख कर दे रहा है कि मैं 1 साल के अंदर अंदर इस टाइम पीरियड में आपको पे कर दूंगा। वो आपके पास टाइम पीरियड हो सकता है मे बी 1 month, मे बी 2 months, 3 months, but the point is less than 1 year। 1 साल से कम में आपको जब आपका डेटर लिख के दे देता है कि मैं आपको पे कर दूंगा तो दैट कम्स विद इन द हेडिंग ऑफ नोट्स रिसीवेबल। आपने उसको यहां पर मेंशन किया है कि ये आपका रिसीवेबल है और ये आपका नोट्स रिसीवेबल है। फिर अकाउंट रिसीवेबल, एज आई मेंशन इन आवर प्रीवियस स्लाइड्स, प्रीवियस लेक्चर्स, these are the receivables which you have given which are generated through your sales। आपने सेल्स की हैं और उसके थ्रू आपके रिसीवेबल्स हो गए। अब यहाँ पर प्रॉपर कोई इस तरह का एग्रीमेंट नहीं होता, आपको आपका जो डेटर है वो लिख कर नहीं देता। आपने सेल किए, आपने मेंशन कर लिए, आपने सेल किए, आप यहाँ पर मेंशन करते जा रहे हैं। देन सप्लाईज, एज वी ऑलरेडी नो कि ये आपके पास स्टेशनरी भी हो सकती है। सप्लाईज में आपके पास ये छोटा छोटा सामान जो कंज्यूम कर लेते हैं आप, आपकी प्रोडक्शन के दौरान, सेल्स के दौरान यूज होता है, वो भी आप सप्लाईज में मेंशन कर देते हैं। एंड अदर प्रीपेड आइटम्स। अब यहाँ पर उसने सिंपल वर्ड यूज किया है प्रीपेड आइटम्स। अब प्रीपेड कुछ भी हो सकता है, प्रीपेड इंश्योरेंस भी हो सकती है, प्रीपेड आपका रेंट भी हो सकता है, प्रीपेड आपकी वेजेस भी हो सकती हैं। So when the word is used prepaid, it means that comes under your current assets. These can be consumed or converted into the cash within 1 year. So आपके पास बेसिक जो चीजें हैं, जो बेसिक करंट एसेट्स हैं आपके, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। इसमें अब जितने मर्जी चीजें ऐड करते जाएं, लेकिन जब हमें पता है कि उसकी नेचर ये है कि that could be converted into the cash or they could be consumed विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर जब आप उनको कंज्यूम कर लेते हैं, कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपके पास ये आते हैं करंट एसेट्स में। देन देयर आर सम एक्सेप्शंस बट दैट्स बेसिकली करेक्ट। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस हेडिंग में नहीं भी आती। ये भी ठीक बात है कि हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जो आपकी जो एक डेफिनेशन आपने बनाई है जिसमें आपके पास 3 कंपोनेंट है, कैश, कन्वर्जन ऑफ कैश या फिर कंज्यूम विद इन 1 ईयर। ये भी हो सकता है। एसेट्स सच एज ऑफिस इक्विपमेंट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड वुड अपीयर अंडर दैट हेडिंग। आ भी सकता है, उसकी कुछ रीजंस होते हैं, हम उन फिलहाल रीजंस में नहीं जा रहे, हम उनकी डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन ये भी हो सकते हैं कि आप बिल्डिंग को भी अपनी करंट एसेट्स में लिख रहे हैं, आप ऑफिस इक्विपमेंट को भी करंट एसेट्स में लिख रहे हैं, आप लैंड को भी लिख रहे हैं। उसकी वजह क्या है? एक छोटी सी बात आपको बताता चलूं कि व्हेन यू आर डूइंग द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग, आप
बिल्डिंग का बिजनेस कर रहे हैं, आप खरीदते हैं सेल कर देते हैं, खरीदते हैं सेल कर देते हैं, तो दैट इज योर नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन। तो आपने फॉर एग्जांपल आज उसको परचेज किया और कल उसको सेल कर दिया, आपको प्रॉफिट नजर आया, आपने आज 10 लाख की परचेज किया है और आपने उसको 12 लाख में कल वो आपकी 12 लाख में सेल हो रही है, तो यू वुड गो फॉर दैट एंड यू आर अर्निंग 2 लाख रुपी फॉर दैट योर ट्रांजेक्शन। सो दैट बिकम्स योर पार्ट ऑफ बिजनेस, योर बिजनेस ऑपरेशंस। तो फिर आपकी ये टाइटल्स फिर आपके करंट एसेट्स में आ जाएंगे। एक छोटी सी आपको बात बताने का मकसद था, आपके पास लैंड है, लैंड परचेज करते हैं, सेल करते हैं, सो दैट कम्स विद इन द हेडिंग ऑफ योर करंट एसेट्स। सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल about these titles. We are not concerned about the titles, we are concerned about the definition. Definition is that your current assets that could be converted into the cash or they could be consumed within 1 year. फिर इसमें टाइटल्स जो मर्जी आते जाएं, आपको बिजनेस ऑपरेशंस का पता चलता है कि बिजनेस ऑपरेशन क्या है, उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि ये आपका करंट एसेट है और ये आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट बनता है। So assets that have a life over year are listed under property, plant and equipment. दूसरी चीज आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की होगी कि आपको कन्वर्ट करते हुए 1 साल से ज्यादा लग जाएगा उसको कैश में, या उसको कंज्यूम करते हुए 1 साल से ज्यादा लग जाएगा, तो दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ 16. नाउ लायबिलिटीज, the other side of your balance sheet. Liabilities due usually within 1 year or less that are to be paid out of current assets are called current liabilities. ऐसी liabilities जिनको आप पे कर देते हैं 1 साल के अंदर अंदर, या जिनको पे करते हैं आप through your current assets. So these are come under the heading of your current liabilities. आपके पास accounts payable है, आप पे करते हैं कैश के थ्रू, कैश इज योर करंट एसेट। वेजेस पेबल कैश के थ्रू पे करते हैं, इंटरेस्ट पेबल कैश के थ्रू पे करते हैं, या अनअर्न्ड फीस वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है फॉरन कैश में जब आप उसको अर्न कर लेते हैं, तो दैट इज योर नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन। और इनकी मैच्योरिटी जो है, इनकी पेमेंट विद इन 1 ईयर है। व्हेन यू हैव अ पेमेंट ऑफ लेस देन 1 ईयर, दे कुड बी they are paid through your current assets, so that comes within the heading of your current liabilities. Liabilities not due for more than a year usually are long term liabilities. अब यहाँ पर आपके पास जो एसेट साइड में हमने देखा था, तो वो आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था। अब यहाँ पर आपके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का टाइटल यूज किया जाएगा, आपके पास फिक्स्ड लाइबिलिटीज नहीं यूज किया जाएगा। करंट लाइबिलिटीज या फिर आपके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आपकी नेचर वही है कि व्हेन यू हैव टू पे दीज लाइबिलिटीज इन मोर देन 1 ईयर, सो दैट कम्स विद इन द हेडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। मॉर्गेज नोट पेएबल, आप एक लंबे अरसे के लिए एक मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मॉर्गेज पेएबल ये भी आपका लंबे अरसे के लिए टाइम पीरियड होता है इसका। फिर बॉन्ड्स पेबल, आप बॉन्ड परचेज करते हैं और इसका भी टाइम पीरियड आपका बहुत हाई होता है। ये नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट आपका 1 साल से ज्यादा होता है, 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, 4 साल, 5 साल, इवन आपके 10 ईयर्स भी होते हैं। सो व्हेन यू हैव लाइबिलिटीज पेबल इन मोर देन 1 ईयर, दैट कम्स विद इन द टाइटल ऑफ योर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अब हमें बेसिक जो फॉर्मेलिटीज हैं उसकी तरफ चले गए। बैलेंस शीट को अब आपको मैं रिव्यू कर रहा हूं कि आपके पास एसेट साइड्स में आपके पास करंट एसेट्स एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरी साइड पे लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। नाउ वर्कशीट, व्हाट इज वर्कशीट बेसिकली? Worksheet is a useful device for understanding the flow of accounting data
फ्रॉम द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हमने बैलेंस शीट तक तो पढ़ लिया है जितना भी कुछ पढ़ना था, जो हमारा पूरे के पूरे स्टेप स्टार्ट हुए जर्नल एंट्री से लेके अप टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक। अब वर्कशीट आपको क्या बताती है? चीजें सारी की सारी यही यूटिलाइज हो रही हैं, आइटम सारे के सारे यही यूटिलाइज हो रहे हैं, लेकिन अब आपके पास एक पेज के अंदर अंदर सारे का सारा डाटा आप इंक्लूड कर रहे हैं। वो डाटा आपका स्टार्ट होगा अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से, फिर आप फाइनली चले जाएंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और उससे आप डाटा निकाल लेंगे कि जो आपने प्लस माइनस की होंगी। कैसे बनाएंगे? आपके पास दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ योर वर्कशीट। फर्स्ट वन, यू हैव टू मेंशन योर अकाउंट्स। ये आपकी सारे के सारे यहां पर टाइटल ऑफ अकाउंट्स चलेंगे कि जिस तरह की डिटेल हमने देखी थी, पूरे के पूरी लिस्ट होगी यहां पर। आप यहां पर ये नहीं देख रहे हैं कि डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, सिंपली यू आर मेंशनिंग अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ योर ट्रायल बैलेंस। आप ना डेबिट में लिख रहे हैं कुछ, ना क्रेडिट में लिख रहे हैं, आप सिंपल पूरी की पूरी एक लिस्ट उठाकर आपने अकाउंट्स की लिख दी है कि जितने अकाउंट्स हैं, कैश है, रिसीवेबल है, सप्लाईज है, अकाउंट्स पेबल है, लाइबिलिटीज में आपके पास अनअर्न्ड रेंट है, फिर आपके पास कैपिटल अकाउंट है, फीस है, उसके बाद आपके पास एक्सपेंसेस है। पूरी की पूरी आप लिस्ट यहां पर, अकाउंट्स लिखने का मकसद यह है कि पूरी की पूरी लिस्ट यहां पर लिखी जाएगी। फिर आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस, जो आपका बेसिकली जो बैलेंस आए हैं आपके, वो सारे के सारे लेजर से वो यहां पे लिखेंगे। जो डेबिट का बैलेंस है वो डेबिट पे लिखा, जो क्रेडिट का बैलेंस है वो आपने क्रेडिट पे लिखा। ये आपने सारे का सारा काम कंप्लीट कर लिया। आपके पास यहां पर ट्रायल बैलेंस में वर्ड डेबिट लिखा हुआ है, जो चीज डेबिट पे बैलेंस थी आपने डेबिट में लिखा, जो क्रेडिट पे थी आपने क्रेडिट में लिखा। अब ये सारे का सारा एरिया आपका यहां से लेके यहां तक, दैट वाज यूज्ड इन द ट्रायल बैलेंस in our previous structure. Now at this stage we are adding two more columns. One is your adjustment, the other is adjusted trial balance. अब हम इस वर्कशीट के ऊपर ही अपनी सारी सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे। आपका ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर नेक्स्ट में जो आपने एडजस्टिंग एंट्रीज की यहां पे मेंशन करेंगे, और फाइनली आप आएंगे एडजस्टेड अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से एडजस्टमेंट करने के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पर। नाउ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जनरल लेजर्स, अकाउंट्स आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर्स: एसेट्स, लायबिलिटीज, स्टेक होल्डर्स इक्विटी, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। अब इसमें थोड़ी सी हायरार्की बनानी होगी कि पहले आपने एसेट्स को लिखना होगा। अब एसेट्स में आपने देखना है कि करंट एसेट्स कौन से, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के एसेट्स कौन से। फिर आपने अपने लायबिलिटीज में आना है, करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। फिर आप ऑनर्स इक्विटी में आएंगे, ऑनर्स इक्विटी के बाद आप आएंगे अपने रेवेन्यूज पर, रेवेन्यूज के बाद आपने फिर एक्सपेंसेस पे आना है। तो ये पूरी की पूरी आपने हायरार्की बनानी है। ये हायरार्की आप इसलिए बनाते हैं ताकि आपके लिए इसमें इजी हो कि आप डिफरेंशिएट करेंगे यहां तक जितनी भी वैल्यूज हैं, ये एसेट्स की हैं, ये आपकी लायबिलिटीज की हैं, ये आपके रेवेन्यूज की लिस्ट है, और ये आपकी एंड पे एक्सपेंसेस की लिस्ट है। ये आप खुद उनकी डिटेल बना के दे रहे हैं। सो एडजस्टमेंट्स, वी विल मेक एन एडजस्टमेंट, द सेकंड कॉलम दैट इज योर एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स आर एंटर्ड हियर, टू पॉसिबिलिटीज: डेफरल्स, existing balances are changed, and accruals, new information is entered. ये वो एडजस्टमेंट थी कि जो आपने पहले डेफरल्स की थी, आपने प्री पेड एक्सपेंसेस किए हुए थे, लेकिन आपने उनको एसेट्स पे लिखा हुआ था। अब उनको एडजस्ट करके आप एक्सपेंसेस में लेके जा रहे हैं, उनमें चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी डेफरल्स के अकाउंट्स एग्जिस्ट करते हैं, उनमें आपने चेंजेस लेकर आनी होती है। आपने एडवांस में या तो पे की होता है या रिसीव की होता है, कुछ ना कुछ आपके अकाउंट्स ऑलरेडी ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उसमें आपने तब्दीलियां करनी होती हैं। लेकिन अक्रूवल्स में आपके पास ऑलरेडी कोई अकाउंट नहीं होता, आपने खुद उसको जनरेट करना होता है, आपने खुद उसको बनाना होता है। तो आपके पास एडजस्टमेंट में या तो डेफरल्स होंगे या आपके अक्रूवल्स होंगे, या आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें चेंजेस लेकर आ रहे हैं, या आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है जिसको आप अपने नॉलेज में लेकर आ रहे हैं और उनको आप अपनी बुक्स में लिख रहे होते हैं।
देन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। फाइनली जो आपने चेंजेस की हैं वो आपकी रिफ्लेक्ट हो रही हैं आपके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। नाउ एडजस्टमेंट्स आर कंबाइंड विद द ट्रायल बैलेंस, अकाउंट बैलेंसेस आर नाउ एडजस्टेड। आपने जो यहां पर अकाउंट्स यूज किए थे उनमें जो चेंजेस आई वो आपने यहां पे लिखी। अब आपके पास फाइनल या डेबिट में आ रही है जो चीज आप डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में जो चीज आ रही है वो आप क्रेडिट में लिखेंगे। तो आपके पास बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है वर्कशीट का। अब आप खुद यहां पर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपने जितने भी वैल्यूज थी पहले जो आपने नॉर्मल प्रोसेस देखा उसमें एक सेपरेट आपका ट्रायल बैलेंस बनता था, फिर आप एडजस्टिंग एंट्रीज करते थे। अब एडजस्टिंग एंट्रीज करने के बाद आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया। ये आपने क्यों किया? बेसिकली अब आप सिंपल काम की तरफ आ रहे हैं क्योंकि इससे पहले आपको काम पता चल चुका है कि आपने काम कैसे करना था। अब आपको पता चल चुका है काम, उसके थ्रू अब यहां पर सिंपल वैल्यूज को खुद ही अपने तौर पे एडजस्ट करते जा रहे हैं। सो दिस इज a complete worksheet that is account. We have used these accounts previously which we are using already in our lectures. You have a cash, receivables, supplies, land, office equipment, then payables, then capital account, then you have revenues and after that you have expenses. बात सारी की सारी वही है जो आपसे मैंने की है कि आपके पास यहाँ पर हायरार्की होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि इस अमाउंट तक, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर यहाँ तक ये सारे के सारे आपके एसेट्स मौजूद हैं, फिर आपके पास यहाँ तक ये आपकी लायबिलिटीज हैं, फिर ये एरिया आपका ओनर्स इक्विटी का है और बाकी आपका ये इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड है। जब ये आपको पता होगा तो मेरे ख्याल में आपके लिए काम ज़रा इजी होगा। हायरार्की बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस आपका सारे का सारा इस तरह का होगा। ट्रायल बैलेंस फिर आप यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे, जो जो आपने वैल्यू डेबिट है तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट बनती है तो आप क्रेडिट करेंगे। फिर आप इस ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट, एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट आप अपनी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पर देखेंगे और अल्टीमेटली जो प्लस माइनस करना होगा आपने वो आप यहाँ पर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लेकर आएंगे। सो अप टू दैट वी हैव now clearly mentioned that this is a structure of worksheet which is very useful for the accountants. यहाँ पे एक पूरे के पूरे पेज में आप सारे के सारे अकाउंट्स देख रहे होते हैं। कोई अगर कहीं पे कोई डाटा मिस है तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, बजाय कि आप पूरी बुक के पेजेस उल्टा कर चेक करें, उन्हें पेजेस को यूज करें, कोई डाटा कहाँ पे पड़ा होगा, कोई डाटा कहाँ पे पड़ा होगा, तो उसके लिए आपको डिफिकल्टी होगी फाइंड आउट करने में। अब यहाँ पर आपके पास क्योंकि एक पूरी शीट मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा डाटा मिस है और कहाँ पर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड थी। अब यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनकी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। सो अप टू दैट व्हाट वी हैव स्टडीड, सिंपली a very small overview of this lecture number 9. We have gone through some basic steps of accounting cycle. Then we personally developed income statement from our adjusted trial balance. We developed our income statement. हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को बनाया है अपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के थ्रू। उसका स्ट्रक्चर देखा है कि हम खुद अगर बनाने लगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके कॉलम्स कैसे बनेंगे, अकाउंट फॉर्म में बनेगा या आपकी रिपोर्ट फॉर्म में बनेगा। देन एसेट्स की क्लासिफिकेशन की हमने, आपके पास एसेट्स कितनी किस्मों के होते हैं। देन लायबिलिटीज की क्लासिफिकेशन की। वर्कशीट देखिए, व्हाट इज अ वर्कशीट एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्कशीट। So up to that, this is an end of lecture number 9. So I hope that you are very familiar about our accounting cycle and a basic structure of worksheet. So inshallah we will meet on lecture number 10. Up to that, thank you very much and Allah Hafiz.